So welcome students. Next I'm going to explain is example number 40 of exercise 5.7. ठीक है. So if y is given as this, prove that कि d square y plus a पूरी equation ਨੂੰ ਆਪਾਂ solve करना है. ठीक है. Prove that this. The thing is that देखो किस तरीके ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਸੋਲਵ ਦ ਥਿੰਗ ਇਜ਼ ਦੈਟ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ y ਗਿਵਨ ਆ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਡਬਲ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਇੱਥੇ ਸਿੰਗਲ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ y ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਵੀ ਚਾਹੀਦੀ ਉਹਨੂੰ ਕੰਬਾਈਨ ਕਰਕੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਐਡ ਜਾਂ ਸਬਟ੍ਰੈਕਟ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਆਨਸਰ 0 ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਇਹ ਮਤਲਬ ਆ ਠੀਕ ਹੈ ਸੋ ਫਸਟ ਵੀ ਨੀਡ ਟੂ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਡਬਲ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਸਿੰਗਲ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਐਂਡ y ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਤਾਂ ਚਲੋ ਗਿਵਨ ਹੀ ਆ ਓਕੇ ਸੋ ਸਿੰਗਲ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਕਾਲਾਂਗੇ ਇਹਦਾ ਦੇਖੋ dy dx ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲਸ ਟੂ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ 3e ਪਾਵਰ 2x 3 ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਲੈ ਲਓ e ਪਾਵਰ 2x ਦਾ ਵਿੱਚ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਕਰੋਗੇ ex ਦਾ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ex ਹੀ ਰਹੇਗਾ ਠੀਕ ਹੈ ਇਨਟੂ d ਬਾਈ dx ਆਫ ਕਿਹਦਾ ਹੋਏਗਾ ਇੱਥੇ 2x ਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਹੁਣ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਥੋੜਾ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾ ਰਹੀ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਵੀ 2 ਕਾਮਨ ਲੈ ਲਓ ਬਾਹਰ ਹੀ ਠੀਕ ਹੈ e ਪਾਵਰ 3x ਦਾ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ e ਪਾਵਰ 3x ਹੀ ਰਹੇਗਾ ਇਨਟੂ d ਬਾਈ dx ਆਫ ਵਾਟ 3x ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਇਹਦਾ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ 2 plus 2 into 3x ਇਹਦਾ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਕਿੰਨਾ ਆਏਗਾ 3 ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ 6e ਪਾਵਰ 2x plus 6e ਪਾਵਰ 3x ਇਹ ਆ ਗਿਆ ਠੀਕ ਹੈ ਬੱਚੇ 6e ਦੀ ਪਾਵਰ 2x plus 6e ਦੀ ਪਾਵਰ 3x ਇਹ ਰਹਿ ਗਿਆ ਮਤਲਬ this is the value for the dy upon dx ਠੀਕ ਹੈ students so next I'm going to find out the d square y upon dx square okay ठीक है I want to find out this okay so देखो ਇਹ ਹੈਗਾ dy upon dx ਇੱਥੇ ਦਾ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ 6 ਤਾਂ ਬਾਹਰ ਹੀ ਲੈ ਲਈਏ ਕਾਮਨ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਪਰ ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਠੀਕ ਹੈ 6 ਕਾਮਨ ਲਿਆ ਆਪਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਅੱਗੇ ਦੇਖੋ ਅੰਦਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਾਲੀ ਟਰਮ ਦਾ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਹੋਣਾ e ਪਾਵਰ 2x ਦਾ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਕੀ ਰਹੇਗਾ e ਪਾਵਰ 2x ਹੀ ਰਹੇਗਾ ਇਨਟੂ d ਬਾਈ dx ਆਫ 2x ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਆਏਗਾ 2 ਆ ਜਾਏਗਾ ਬਾਹਰ ਲਿਖਾਂਗੇ ਠੀਕ ਹੈ e ਪਾਵਰ 3x ਦਾ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ e ਪਾਵਰ 3x 3 ਲਿਖੋਗੇ ਨਾਲ 3x ਦਾ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਬਾਹਰ 3 ਵੀ ਤੇ ਆਊਗਾ ਫਿਰ ਠੀਕ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਹੁਣ ਕਰੋ ਇਹਨੂੰ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰ ਲਓ 12 e ਪਾਵਰ 2x plus 18 e ਪਾਵਰ 3x ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਸੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦਾ ਵੈਲਿਊ ਫॉर ਦਾ d ਸਕੁਅਰ y upon dx ਸਕੁਅਰ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ d ਸਕੁਅਰ y ਦੀ ਵੀ ਵੈਲਿਊ ਆ ਗਈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ dy upon dx ਵੀ ਆ ਗਿਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੁਣ ਇਸ ਇਕੁਏਸ਼ਨ 'ਚ ਪੁੱਟ ਕਰਕੇ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪ੍ਰੂਫ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਰਾਈਟ ਹੈਂਡ ਲੈਫਟ ਹੈਂਡ ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਆ ਜਾਏ ਰਾਈਟ ਹੈਂਡ 'ਚ ਪੁੱਟ ਕਰਦੇ ਆ ਲੈਫਟ ਹੈਂਡ ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਦੇਖੋ d ਸਕੁਅਰ y upon dx ਸਕੁਅਰ minus 5 dy upon dx plus 6y is equals to 0 we need to find out this ਹਾਂਜੀ ਬੱਚੇ ਇੱਥੇ ਪਹਿਲੇ ਡਬਲ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਇਹ ਵੈਲਿਊ ਪੁੱਟ ਕਰੋ ਜੋ ਵੀ d ਸਕੁਅਰ y upon dx ਕਰਦੀ ਯਾਨੀ ਕਿ 12 e ਪਾਵਰ 2x plus 18 e ਪਾਵਰ 3x minus 5 ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਹੀ ਵਾਲੀ ਪੁੱਟ ਕਰਦਾ ਬੱਚੇ dy upon dx ਦੀ ਵੈਲਿਊ 6e ਪਾਵਰ 2x plus 6e ਪਾਵਰ 3x plus 6y ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆ ਜਿਹੜੀ ਸਿੰਪਲ ਗਿਵਨ ਆ ਉਹ ਵਾਲੀ ਠੀਕ ਹੈ 3e ਦੀ ਪਾਵਰ 2x plus 2e ਦੀ ਪਾਵਰ 3x ਓਕੇ ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਬੱਚੇ ਸੋਲਵ ਕਰੋ ਦੇਖੋ ਕਿ ਇਹ y ਦੇ 0 ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਅਸੀਂ 0 ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿ ਪ੍ਰੂਫ ਹੋ ਜਾਏ ਲੈਫਟ ਹੈਂਡ ਰਾਈਟ ਹੈਂਡ ਦੇ ਓਕੇ ਸੋ ਇਟ ਇਜ਼ 12e ਪਾਵਰ 2x plus 18 e power 3x minus 30 e power 2x minus 30 e power 3x plus 18 e ਦੀ ਪਾਵਰ 2x ਠੀਕ ਹੈ plus 12 e ਦੀ ਪਾਵਰ 3x ਠੀਕ ਹੈ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਕੈਂਸਲ ਆਊਟ ਕਰੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖੋ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਾਂ e ਪਾਵਰ 2x ਆ ਇਧਰੋਂ e ਪਾਵਰ 2x ਹੈ 12 ਤੇ 18 ਕਿੰਨੇ ਹੋ ਗਏ 30 ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਆ plus 30 ਤੇ ਆ ਵਾਲਾ minus 30 ਵਾਲਾ ਮਤਲਬ ਆ ਚੀਜ਼ ਕੈਂਸਲ ਹੋ ਗਈ e ਪਾਵਰ 2x ਵਾਲੀ ओके इसी तरीके के नाल ए 18 ते आ 12 बन गए 30 प्लस 30 ते माइनस 33 एक सारा कैंसिल होके बन गया 0 सो दिस विल बी योर प्रूफ हो गया मतलब आंसर आ गया लेफ्ट हैंड राइट हैंड दे इक्वल प्रूफ हो गया ओके सो इन दिस वे यू विल डू दिस क्वेश्चन एग्जाम्पल नंबर 40 स्टूडेंट्स दिस इज अ इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल इदा के क्वेश्चन पेपर पॉइंट ऑफ व्यू के लिए इंपॉर्टेंट है आ जाते होंगे क्वेश्चन इदा के ठीक है सो ये तुम करोगे खुद ही नैक्सट एग्जाम्पल इज हाँ जी बच्चे देखो ये क्वेश्चन गिवन है y इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स x ये शो करके दिखाना आपको मतलब लैफ्ट हैंड राइट हैंड इक्वल आनी चाहिए शो करने का मतलब ये होंगे ठीक है सो देखो इतने भी की है सैकेंड हैंड डेरीवेटिव आ फिर है सैकेंड ऑर्डर डेरीवेटिव आ इतने भी आ फर्स्ट ऑर्डर डेरीवेटिव आ
ਇਹਦਾ ਪਹਿਲੇ ਸੈਕੰਡ ਆਰਡਰ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ फस्ट ऑर्डर निकालेंगे फिर सेकंड ऑर्डर। हाँ जी, डी वाई अपॉन डी एक्स कढ़िए, साइन इनवर्स का डेरीवेटिव अगर याद होए तो √1 माइनस एक्स स्क्वायर डायरैक्ट रिजल्ट है। ठीक है, तो डबल डेरीवेटिव बच्चे कढ़ना है तो देखो डबल डेरीवेटिव अगर मैं कढ़ना होवे तो यू अपॉन वी की फॉर्म बन रही है तो वी के थले आ रहा √। सो इनू कढ़न के वैसे तो बहुत दो तीन तरीके है, बट ईजीएस्ट वन मैं तुहानू दस रही हाँ जिसदे सौखे तरीके के नाल, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन तुसीं इदां दे करोगे। ठीक है, तो ईजीएस्ट वे तुहानू मैं दस रही हाँ किहड़ा हैगा वा। ईजीएस्ट वे इदां है कि इनू इदां कर लो 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल्स टू 1। ठीक है, इधर लैके चलेगी मैं ਇਹਦੀ ਕੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਆਪਾਂ ਸਕੇਅਰਿੰਗ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਕੇਅਰਿੰਗ ਇਸ ਲਈ ਕਰੀ ਦੀ ਕਿ ਇਹਦਾ ਅੰਡਰ ਰੂਟ ਕੈਂਸਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅੰਡਰ ਰੂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਏਟ ਕਰਨਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਈਜ਼ੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਸਕੇਅਰਿੰਗ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਅਗਰ ਮੈਂ ਸਕੇਅਰਿੰਗ ਕਰਾਂ ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ, ਤੇ ਅਗਰ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਸਕੇਅਰ ਕਰਾਂ ਤੇ ਕੀ ਆਏਗਾ 1 ਮਾਈਨਸ ਐਕਸ ਸਕੇਅਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਇੱਥੇ, ਇਹਦੀ ਵੀ ਤਾਂ ਸਕੇਅਰਿੰਗ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਫਿਰ ਕੀ ਲਿਖੋਗੇ ਡੀ ਵਾਈ अपॉन डी एक्स ਦਾ ਕੀ ਆ ਜਾਏਗਾ ਹੋਲ ਸਕੇਅਰ, ਇੱਧਰੋਂ ਵੀ ਸਕੇਅਰਿੰਗ ਬੋਥ ਸਾਈਡ ਕਰਨੀ ਤੇ 1 ਦਾ ਸਕੇਅਰ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ 1 ਹੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਦਾਂ ਇਹਦਾ ਹੋਲ ਸਕੇਅਰ ਇਹਦਾ ਵੀ ਹੋਲ ਸਕੇਅਰ। ओके, हुण डिफरेंशिएट करांगे असीं इहनूं, डिफरेंशिएट विद रिस्पैक्ट टू एक्स, मतलब डबल डेरीवेटिव हुण आएगा साडे कोल। ठीक है, एक तो वैल्यू है वाली आ गई, डबल डेरीवेटिव निकालने लगी। ओके, मैं इनू डबल डेरीवेटिव निकालोगे u इंटू वी लगाओ। ठीक है, तो पहले u उदा ही लिख देना डी बाई डी एक्स ऑफ, ओके एक मिनट, डी बाई डी एक्स ऑफ इस टर्म का डी बाई डी एक्स है ना, इस टर्म का डी बाई डी एक्स आप देखने मैं कितना करना है। ठीक है, हुण यही दिस इज़ द मेजर स्टैप कि किस तरीके के नाल डेरीवेटिव आएगा। देखो ठीक है, प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स द होल स्क्वायर इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, डिफरेंशिएट किया मैं u उदा ही लिखा v का डेरीवेटिव, फिर ए उदा ही लिखा एदा डेरीवेटिव 1 का डेरीवेटिव 0। ठीक है स्टूडेंट्स, अगे देखो 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ओके, आ देखो बच्चे ਇਹਦਾ डेरीवेटिव कितना आएगा, इस चीज़ का डेरीवेटिव इनू पता की लै लेना आप ना थोड़ा जा इदा लिखीदा वा डी बाई डी एक्स ऑफ, मान लो कि इत्थे मेरे कोल हैगा वा मान लो इत्थे मेरे कोल इफ इट इज़ वाई स्क्वायर, इफ इट इज़ वाई स्क्वायर। ओके, सो वट यू विल राइट, तुसी की लिखोगे इत्थे इदा वाई का मान लो होल स्क्वायर है इतना है ना, तो इसका डेरीवेटिव कितना लिखोगे विद रिस्पैक्ट टू एक्स, वाई की पावर 2 है कि लिखोगे 2y। ठीक है, 2y इंटू की लिखोगे डी बाई डी एक्स ऑफ जो भी अंदर वाला फंक्शन होता है इदा इदा आएगी उसकी वैल्यू। सो इतने भी इदा ही लिखोगे कि डी बाई डी एक्स ऑफ एदा डेरीवेटिव कढ़ना, इनू सिंगल एक फंक्शन मान लो। ठीक है, फंक्शन मान लो वो पावर 2 ही है, एक्स पावर n वाला फॉर्मूला लगाओ जिदा। ठीक है, यदा मतलब की होंदा वा पावर अगे आ जाती है 2 की लिखते हो डी वाई अपॉन डी एक्स। ठीक है, एक्स पावर n का इतने फॉर्मूला लगाया n एक्स n माइनस 1 2 माइनस 1 हो गया, इंटू ही लिखते हो डी बाई डी एक्स ऑफ अंदर वाले फंक्शन का डेरीवेटिव। ठीक है ना, जिदा इत्थे कीता सीगा 2y अंदर वाले फंक्शन का डेरीवेटिव। ठीक है, इस तरीके 2 आ वाला चीज़ डी बाई डी एक्स ऑफ अंदर वाला फंक्शन, अंदर वाला फंक्शन भी होना ही गिवन है तो सानू इदा ही लिखना पैना। ठीक है, सो इस तरीके सो डी वाई अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, यदा डेरीवेटिव बच्चे करोगे तो क्या आएगा -2x इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, आ देखो 1 माइनस एक्स स्क्वायर है ना, 2 बच्चे देखो इतने 2 डी वाई अपॉन डी एक्स इनू इदा ही रहन दो। आ देखो इनू स्टूडेंट्स मैं लिख सकती हाँ डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स सा स्क्वायर, आ चीज़ नूं ए वाली चीज़ नूं मल्टीप्लाई कर दो ना, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स द स्क्वायर डबल डेरीवेटिव आ। ठीक है, प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स द होल स्क्वायर माइनस 2x इज इक्वल्स टू 0। ओके, तो इतने स्टूडेंट साढ़े को बस डायरैक्ट ही आंसर आ जाना। डायरैक्ट आंसर जिदा मैं दसती हाँ, आ देखो स्टूडेंट्स इतने साढ़े को डायरैक्ट आंसर आएगा इदा। हाँ जी बच्चे, मैं इन्हू सॉल्व करन लगी इत्थे 1 माइनस एक्स स्क्वायर आ 2 बाहर लै लो, डी वाई अपॉन डी एक्स नाल की गवा डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स द स्क्वायर प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स द होल स्क्वायर। ठीक है, इत्थे भी माइनस है -2 इत्थे भी है नाल एक्स भी है इज इक्वल्स टू 0। ओके,
तो इनू किदां लिखोगे, इत्थे देखो बच्चे इत्थे भी dy अपॉन dx है, इत्थे भी dy अपॉन dx है। इनू ते इन्हां दे विचों मैं एक कॉमन लैन लगी हाँ मैं, ठीक है ना, क्योंकि दो बारी आ इत्थे मेरे को, ठीक है। तो एक बारी है कि इत्थे डबल बारी है, एक चीज़ मैं कॉमन लै सकती हाँ। एक है भी 2 इत्थे भी 2 है, इसका मतलब मैं कॉमन लै रही हाँ। किनू कॉमन लै रही हाँ, 2 dy अपॉन dx नू मैं कॉमन लै रही हाँ, ठीक है। कॉमन लिया की रह जाएगा मेरे को 1 माइनस एक्स स्केयर, आवली चीज़ से कॉमन आ गई, की रह गया मेरे को डी वाई डी स्केयर वाई अपॉन डी एक्स स्केयर, ठीक है। -2 तो कॉमन आ गया, इन्हों विचों भी एक कॉमन आ गई, ठीक है। इसका मतलब की रह गया मेरे को एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स, ठीक है जी, बस हो गया, इज इक्वल्स टू 0। तो स्टूडेंट्स आवली टर्म इधर 0 की जाके तो खत्म ही हो जाएगी। तो कितना रह गया 1 माइनस एक्स स्केयर डी स्केयर वाई अपॉन डी एक्स द स्केयर माइनस एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल्स टू 0। तो बच्चे देखो इत्थे आपां यही प्रूफ करना है जो उन्होंने लिखा है कि आ शो करके दिखाओ, तो यही शो हो गया, साढ़े को आंसर आ गया इत्थे, ठीक है। इत्थे बस मेनली तुसीं याद रखना कि इहदा डेरीवेटिव जिहड़ा है ना, ये किस तरीके दे नाल असीं फाइंड आउट कीता। इन्हों मैं एक होर सिंपल तरीके दे नाल भी दस सकती हाँ, जिहड़ा कि थोड़ा करन दे विच ईजी रहेगा। 1 माइनस एक्स स्केयर है ना, बच्चे देखो सानू पता है कि सिंगल डेरीवेटिव डी वाई अपॉन डी एक्स मैं लिखती हाँ y1, ठीक है। तो डी वाई अपॉन डी स्केयर अपॉन डी एक्स स्केयर मतलब डबल डेरीवेटिव में लिखी था y2, ठीक है। अगर इन्हू मैं इदा लिख लो 1 माइनस एक्स स्केयर डी वाई अपॉन डी एक्स का होल स्केयर है ना, ठीक है। इतने मैं लिख सकती हाँ y1 का होल स्केयर, ठीक है ना। y1 सीगा ना, y1 का होल स्केयर इक्वल टू 1। इतने इनू डिफरेंशिएट करो, यानी कि 1 माइनस एक्स स्केयर, इतने ना तुसीं यह याद रखना कि इसका डिफरेंशिएट कितना होएगा 2y1, ठीक है ना। यदि पावर 2 है ना, 2y1 इंटू अगर y1 का डेरीवेटिव एक बारी होर करोगे, मतलब आ सिंगल डेरीवेटिव आ, एक बारी डेरीवेटिव होर किया तो डबल डेरीवेटिव बन गया, मतलब इदा, ठीक है। प्लस y1 का स्केयर इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ इदा की आ जाएगा -2x इज इक्वल्स टू 1। सो सिंपली इत्थे 2y1 y2 -2x y1 का होल स्केयर इक्वल टू 0। इत्थे भी की करो 2y1 कॉमन लै लो, ठीक है। 1 माइनस एक्स स्केयर y2 -2x y1 x y1 इज इक्वल्स टू 0। तो स्टूडेंट्स आही बन गया है साढ़े कोल आ y2, यही चीज़ बन गई साढ़े कोल, आही वाली सेम ही है, y2 की जगह तो डी स्केयर आया, इत्थे भी यही है। आ थोड़ा जा ईजीएस्ट मैथड है, लिखण दे विच थोड़ा ईजीएस्ट है, रिटन दे विच थोड़ा ईजीएस्ट है, शॉर्ट है, ईजी है, ठीक है। इदा लिखोगे आपां इहनूं, ठीक है। समझण दी लोड़ है, थोड़ा ठीक तरह कर लो, ओके। सो नैक्सट मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ क्वेश्चनस नूं, ओके। बच्चे देखो आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन द 13th क्वेश्चन, ठीक है। वो वाई वैल्यू गिवन है, शो दैट दिस थिंग आपां शो करके दिखानी है, प्रूफ करके दिखानी है, ओके। देखो ये भी y2 y1 y गिवन है, हुण तुहानूं पता लग ही गया होगा कि y1 का मतलब की है सिंगल डेरीवेटिव, y2 का मतलब है डबल डेरीवेटिव। थोड़ा शॉर्ट च लिखण दे लई, मतलब एक्सटेंडिड फॉर्म च ना लिखण दी, थोड़ा ब्रीफ च लिखण दी y1 y2 आप यूज़ करी दिया, थोड़ा ईजी हो जाता ये करना, ओके। तो ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਰਾਂਗੇ, y1 y2 ही यूज़ करके मैं क्वेश्चन च सम करांगी, ठीक है। सो y गिवन है, ਇਹਦਾ मतलब सब तो पहले y1 निकालना, फिर y2 निकालना। y1 इज़ द सिंगल डेरीवेटिव, y2 इज़ द डबल डेरीवेटिव, ओके। सो सब तो पहले देखो इहदा अगर मैं y1 निकाला, ठीक है ना, ओके। सो 3 कॉमन है, cos log x का डेरीवेटिव कितना, cos का डेरीवेटिव कितना होंदा माइनस साइन x, ਇਹਦਾ मतलब माइनस साइन log x इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ log x, डी बाई डी एक्स ऑफ log x करोगे तो कितना 1/x हो जाता, ओके। सो प्लस साइन एक्स का डेरीवेटिव इज वॉट, cos log x, हाँ जी, एंड log x का डेरीवेटिव अंदर तो अपॉन x, ठीक है। इनू बच्चे x जोड़ा है ना दोनों तो कॉमन लैके मैं लिख सकती हाँ x y1 इज इक्वल्स टू -3 साइन log x प्लस 4 cos log x, ठीक है जी। हुण एक सिंगल डेरीवेटिव आ गया, डबल डेरीवेटिव करना अगर अगेन डिफरेंशिएटिंग इट विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। फिर इनू डेरीवेटिव करो, देखो इहदा डेरीवेटिव पता किद्दां होएगा, इनू लो u इनू लो v, ठीक है। इत्थे प्रोडक्ट दे नाल आपां डेरीवेटिव कढना है, ठीक है। आ देखो u का मतलब एक डेरीवेटिव इदां ही इंटू इहदा पहली वाली चीज़ उदा ही लिखी दी आ, ठीक है।
v ਦਾ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਹੁੰਦਾ x ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਲਿਖ ਦੋ, v ਦਾ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਕਰਾਂਗੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਅਗਰ y1 ਹੈ y1 ਦਾ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਕਰੋਗੇ, y1 ਕੀ ਹੈਗਾ ਵਾ ਸਿੰਗਲ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ y1, ਠੀਕ ਹੈ ਦਿਸ ਇਜ਼ y1, ठीक है तो y2 की होगा वा डबल डेरीवेटिव, ठीक है ना। ये तो मतलब सिंगल डेरीवेटिव आ, ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਹੋਰ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਕਰੋਗੇ तो डबल डेरीवेटिव बन जाएगा, ਇਹਦਾ मतलब y1 ਦਾ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਕਰਾਂਗੇ तो ਕੀ ਬਣ ਜਾਏਗਾ y2। ਸੋ ਇੱਥੇ ਕੀ ਆ ਪਹਿਲਾ x ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ, y1 ਦਾ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਕੀਤਾ ਤੇ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ y2। ਓਕੇ ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ ਕੀ ਕਰਨਾ ਵਾ ਇਹਨੂੰ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਲਿਖ ਦਿਓ, y1 ਨੂੰ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਕਰੋ x ਦਾ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ 1 ਸਿੰਪਲ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਦਾਂ ਹੁਣ ਇਧਰੋਂ ਇਹਦਾ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਦੇਖੋ -3 ਉੱਦਾਂ ਹੀ sin log x ਦਾ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ, sin x ਦਾ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ cos x, cos log x ਦਾ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ 1/x ਡਾਇਰੈਕਟ ਲਿਖ ਰਹੀ ਹਾਂ ਹੁਣ ਮੈਂ, ਠੀਕ ਹੈ। 4 cos log x ਦਾ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ, cos ਦਾ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ -sin x, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇੱਥੇ ਮਾਈਨਸ ਕਰਨਾ -sin log x ਤੇ log x ਦਾ ਅੰਦਰੋਂ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ x, ठीक है। फिर इन्होंने दोनों x कॉमन लैके इधर मल्टीप्लाई कर दो, x इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा साढ़े को, इन्होंने दोनों चो माइनस कॉमन लै लो, ठीक है। माइनस कॉमन आ गया साढ़े को, माइनस cos log x प्लस 4 sin log x, इनू मल्टीप्लाई करोगे x² y2 प्लस xy1 इज इक्वल्स टू माइनस, बच्चे आ वैल्यू तो आ y की टर्म देखो कंपेयर करो तो बिल्कुल सेम ही आ, 3 log x इतने भी वही आ, सब कुछ सेम आ। तो कहना राइट दिस पूरी टर्म मैं लिख सकती हाँ -y, ठीक है। तो इदा कर लो x² y2 प्लस xy1 प्लस y इज इक्वल्स टू 0। सो आही शो करना है, आही शो हो गया साढ़े को इतने, ओके। सो थोड़ा ध्यान नाल करना है बच्चे, बड़े ईजी आ तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ, इदा ही करोगे सारे क्वेश्चन, शो दैट वाले प्रूफ वाले एक क्वेश्चन जरूर ये पेपर च आंदा हुंदा, ठीक है। सो ध्यान नाल करो वाले क्वेश्चन। 13 क्वेश्चन हो गया, नैक्सट इज़ दी 14th क्वेश्चन। हाँ जी, नैक्सट इज़ दी 14th क्वेश्चन फ्रॉम योर NCERT बुक। इफ़ y इज़ AMX दिस इज़ गिवन, शो ए वाली चीज़ करके दिखानी है, ठीक है। मीनस इतने d² y भी चाहिए, फस्ट डेरीवेटिव भी चाहिए, सैकेंड डेरीवेटिव भी चाहिए, तो इस पूरी चीज़ में इदा कंबाइन करके आंसर 0 आना चाहिए। ओके देखो y गिवन आ, तो फस्ट डेरीवेटिव इतना निकालेंगे सब तो पहले dy/dx इज इक्वल्स टू, बच्चे a इज़ अ कॉन्सटेंट, ओके। सो e⁻m x, ਇਹਦਾ मतलब ex ਦਾ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ex ਹੀ, यानी कि e⁻m x इनटू की ਹੁੰਦਾ ਵਾ d/dx ऑफ व्हाट mx, ठीक है, प्लस b कॉन्सटेंट आ e⁻n x ਦਾ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ e⁻n x इनटू d/dx ऑफ nx, जो भी ਉਹਦੀ ਪਾਵਰ ਹੁੰਦੀ ਉਹਦਾ। ਹੁਣ मैं एक्सप्लेन करके लिख रही हाँ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ठीक है। mx का डेरीवेटिव m प्लस b e⁻n x का डेरीवेटिव कला n, क्योंकि x का डेरीवेटिव 1 हो जाएगा तो n की है इतने कॉन्सटेंट है। बच्चे x तो y सिर्फ वेरीएबल होंगे, बाकी कुछ हो रही कोई कुछ भी गिवन हो सब कुछ कॉन्सटेंट होंगे, ठीक है जी। सो इतने आ गया साढ़े कोल फस्ट डेरीवेटिव, ठीक है जी, a(m)e⁻m(x) प्लस b(n)e⁻n(x), ठीक है। फस्ट डेरीवेटिव आ गया, असी ये निकालना है dy/dx निकालना है, ओके जी। a तो m दोनों ही की गया कॉन्सटेंट, a तो m पहले ही बाहर लिख लो, ओके। सो e⁻mx का डेरीवेटिव कितना होएगा e⁻mx, ठीक है, इनटू इदा ही mx का डेरीवेटिव, फिर की आ जाएगा m आ जाएगा साढ़े को, इतने पहले ही m लिख दो तो m ऑलरेडी है m का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अगे bn ऑलरेडी गिवन है, e⁻nx का डेरीवेटिव e⁻nx, ठीक है। nx का डेरीवेटिव करोगे तो कला n, सो ये स्क्वायर लिख दो, ठीक है। सैकेंड डेरीवेटिव आ गया, सिंपली पुट ओवर देयर तो आंसर देखते हैं 0 के इक्वल आता कि नहीं आता, दोनों डेरीवेटिव साढ़े को आ गया तो y की वैल्यू भी सानू को गिवन है। सो असी की करना d² y/dx², ओके। पुट द वैल्यू ऑफ d² y/d, इत्थे पुट करो am² e⁻mx प्लस bn² e⁻nx, ओके। ए वैल्यू पुट हो गई यदि माइनस m प्लस n है dy/dx है, ठीक है। पुट द वैल्यू ऑफ dy/dx ओवर हियर, bn
ठीक है, प्लस एम एन वाई की वैल्यू बच्चे कितनी आ, ए वाली बेसिक वैल्यू। सो इत्थे पुट कर दो। सिंपली हजे मैं कुछ नहीं किया, सिंपली हजे मैं वैल्यूज़ पुट की हैं जो जो मेरे को हैगियां सीगी। ओके, तो इनू आप सॉल्व करना तो मेरे को आंसर 0 आना चाहिए, मतलब सब कुछ कैंसल आउट हो जाना चाहिए इतने। तो देखो किदा करांगे, इनू तो आप कुछ नहीं कर सकते। ए एम स्केयर ई दी पावर एम एक्स प्लस बी एन स्केयर ई दी पावर एम एक्स। ओके, एंड ए जो टर्म है ना, इनू अंदर मल्टीप्लाई करना, मतलब एम प्लस एन ये भी मल्टीप्लाई होना, तो एम प्लस एन जोड़ा ये भी मल्टीप्लाई होना। ठीक है, तो सब तो पहले मैं एम नू कर लैनी हाँ, एम नू दोनों नाल हो जाएगा, फिर उस तो बाद एन जोड़ा टर्म दोनों नाल हो जाएगी। मैं की किया, ए वाला एम पहले मैं ये कर लगी, फिर ये हजे सिर्फ एम। ओके, माइनस ए एम स्केयर हो जाएगा ई दी पावर एम एक्स, फिर आही वाला एम माइनस एम जोड़ा वो इतने मल्टीप्लाई होएगा। ठीक है, एम इतने मल्टीप्लाई होएगा, यानी कि बी एम एन ई दी पावर एन एक्स। ओके, हुण आही वाला एन जोड़ा है ये भी तो माइनस ही आना, बिकॉज टोटल टर्म माइनस चा। ओके, सो माइनस एन ये ए एन एम ई दी पावर एम एक्स। हुण आही वाला एन जोड़ा इत्थे मल्टीप्लाई होएगा, यानी कि बी एन स्केयर हो जाएगा इत्थे ई दी पावर एन एक्स। ठीक है जी, अगे देखो प्लस एम एन ये भी मल्टीप्लाई होना, एम एन ये भी मल्टीप्लाई होना, यानी कि एम एन ए पावर ई एम एक्स इत्थे प्लस एम एन बी ई दी पावर एन एक्स। हूँ देखते हैं किदा किदा कटिंग्स हो रही हैं। देखो ए एम स्केयर वाली क्या टर्म है, एक आ टर्म है, क्या दोनों सेम है, टर्म कैंसिल कर दिए। ठीक है, बी एन स्केयर वाली क्या आ गया, एक आ गई पॉजिटिव नैगेटिव कैंसिल हो गए। ठीक है, हूँ आ वाली बी एम एन ए भी इत्थे बी एम एन वाली टर्म आ कैंसिल होगी, प्लस माइनस ए भी कैंसिल होगी। सो आंसर विल बी 0। आई 0 ही प्रूव करना है, दिस विल बी योर आंसर। शो हो गया, यानी कि प्रूव्ड, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड प्रूफ। ठीक है बच्चे, इदा करांगे वाले सारे क्वेश्चन, मैं प्रूफ वाले काफ़ी क्वेश्चन कराते हैं, बाकी तुम अपने आप करोगे। सो नेक्स्ट इज दी 16th क्वेश्चन आई एम गोइंग टू डू। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 16 फ्रॉम योर NCERT बुक, इट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बच्चे देखो ये की करना है, ई वाई एक्स प्लस 1 गिवन है, शो है करके दिखाना है। ठीक है, देखो आम तुहानूं लगता है कि सारे फंक्शन जिन्हें भी पिछले गिवन से ना वाई इक्वल टू गिवन से। सो यह देखो कि फॉर्म च गिवन है, इंप्लीसिट फंक्शन की फॉर्म च गिवन है कि वाई नूं आपां सैपरेट ही नहीं कर सकते। ठीक है ना, वाई सैपरेट होएगा तो डी वाई अपॉन डी एक्स आएगा, डी स्केयर आएगा, है ना। दिस इज इंप्लीसिट फंक्शन, और इंप्लीसिट भी है और पावर की फॉर्म च भी गिवन है, थोड़ा कॉम्पलैक्स भी है। सो इस क्वेश्चन में बच्चे आप लॉग लगा के सॉल्व करांगे, लॉग की हेल्प के सॉल्व करेंगे, वो ईजीली सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, सो सब तो पहले मैं लॉग लगा रही हाँ। ठीक है, सो टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, लॉग ई पावर वाई एक्स प्लस 1 इज इक्वल्स टू लॉग ऑफ 1। लॉग की हेल्प के ईजीली सॉल्व हो जाएगा। लॉग एम इंटू एन, ठीक है, लॉग एम इंटू एन की हो जाता है लॉग एम प्लस लॉग एन। सो इत्थे अच्छा बच्चे लॉग 1 की वैल्यू जी होंगी ना, रिजल्ट होंगे लॉग 1 की वैल्यू जी होंगी ना, दैट इज़ 0। ये तुहानूं याद करनी पैनी है, यू हैव टू रिमेंबर इट कि लॉग 1 जिथे भी लॉग 1 लिखा हो 0। सो लॉग 1 डायरैक्टली 0, नॉट अ डेरीवेटिव कि लॉग 1 का डेरीवेटिव 0 होंगे, लॉग 1 ही 0 होंगे, डायरैक्टली 0 होंगे। ठीक है, इत्थे हुण मैं बच्चे इसका डेरीवेटिव करांगे। ठीक है बच्चे, अगे देखो इनू किदां सॉल्व करांगे, लॉग एम पावर एन, ठीक है, की होंगी है एन लॉग एम, पावर अगे आ जाती है, किदां करांगे वाई लॉग ई प्लस लॉग एक्स प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। हाँ जी, लॉग ई तुहानूं पता है, लॉग ई 1, लॉग ई 1 तो लॉग 1 0। ठीक है, रिजल्ट सा याद रखो। सो वाई प्लस लॉग एक्स प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, हूँ इनू बच्चे आप करांगे डिफरेंशिएट। ठीक है, तो हूँ इनू डिफरेंशिएट कर लो सिंपली, तो इत्थे ले लो वाई का डेरीवेटिव की आएगा डी वाई अपॉन डी एक्स। ठीक है, प्लस लॉग का डेरीवेटिव की आएगा 1 अपॉन एक्स। ठीक है, इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल्स टू डी एक्स प्लस 1 का डेरीवेटिव बच्चे 1 ही आएगा, एक्स का डेरीवेटिव 1, 1 का डेरीवेटिव 0, तो 1 ही हो गया। ठीक है, तो इनू बच्चे मैं इधर लै रही हूँ, माइनस एक्स प्लस 1 इधर लिख रही हूँ। सो दिस इज़ द वैल्यू ऑफ डी वाई अपॉन डी एक्स। सानू डबल डेरीवेटिव भी चाहिए, सो इतने डबल डेरीवेटिव की भी निकाल लो वैल्यू। देखो स्टूडेंट्स, इतने
देखो वैसे तो आप मैं तुहानूं दसां ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਮੈਂ ਸ਼ਾਰਟ ਤਰੀਕਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹਾਂ ਸੋਲਵ ਕਰਨ ਦਾ -1 upon this ਜਦੋਂ ਵੀ ਇਦਾਂ ਵਾਲੀ ਫਾਰਮ ਆਵੇ। ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੱਚੇ 1 upon x ਦਾ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਮੈਂ ਸੋਲਵ ਕਰਕੇ ਦੱਸਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ 1 upon x ਦਾ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਵੇ ਤੇ -1 upon x ਸਕੁਅਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ठीक है, मैं फिर भी दस देनी किस तरह होंगी है d/dx ऑफ -1 upon x का मतलब होंगे x की पावर -1 x पावर n लगाओ तो -1 x की पावर -1 -1 ठीक है ना। ये मतलब -1 x की पावर कितनी होगी -2 -1 upon x स्क्वायर ठीक है। हुण अगर 1 upon x की वैल्यू अगर डेरिवेटिव -1 upon x स्क्वायर है यदा मतलब d/dx ऑफ अगर d/dx ऑफ इत्थे अगर 1 + x + 1 भी आ जाता वै ठीक है ना, तो की लिखोगे -1 ओवर x + 1 का होल स्क्वायर लिख सकते हो इनू। अगर 1 upon x है तो यदा डेरिवेटिव यह है वै मतलब जो भी x होंदा वो x स्क्वायर हो जाता नाल ठीक है। तो अगर पॉजिटिव आ तो इत्थे नैगेटिव हो जाता ठीक है। मान लो इत्थे नैगेटिव होंदा तो इत्थे पॉजिटिव भी हो जाता ठीक है। इस तरीके के नाल मैं लिख सकती हूँ 1 upon x + 1 का डायरैक्ट डेरिवेटिव -1 upon x + 1 का होल स्क्वायर। सो मैं इत्थे उही डायरैक्ट लिखन लगी डेरिवेटिव इहदा ठीक है। अगर तुहानूं लगे तुसीं सॉल्व करना चाहते हो तो इत्थे u upon v का फॉर्मूला लगा लो, यही आंसर आएगा सेम ओके। मैं इत्थे डायरैक्ट डेरिवेटिव लिख रही हूँ -1 upon x स्क्वायर। तुसीं आ भी के लिख सकते हो कि यूजिंग दिस रिजल्ट कि सानूं पता है कि आह रिजल्ट हैगा वै = 1 upon x स्क्वायर, या रिजल्ट लगा लो अगर नहीं लगाना तो u upon v ला के तो डेरिवेटिव दोबारा कट ओके। सो दोनों डेरिवेटिव्स आ गए मेरे को ओके। पुट ओवर हेयर देखो ये दोनों डेरिवेटिव्स जोड़े आ ये दोनों डेरिवेटिव्स की वैल्यू सेम है मतलब d² y upon dx स्क्वायर। आ देखो ए सॉल्व करना ना d² y upon dx स्क्वायर वी हैव टू शो कि यदी वैल्यू dy upon dx दे होल स्क्वायर दे बराबर ही है, यानी कि आ वैल्यू इत्थे -1 upon x + 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू आ देखो इत्थे। अच्छा एक बच्चे थोड़ी जी गड़बड़ की मैं इत्थे हैगा सीगा -1 upon x + 1 ठीक है ना। देखो इत्थे पॉजिटिव सीगा तो इहदा जिहड़ा डेरिवेटिव आंदा नैगेटिव आंदा ठीक है। इस तरीके मैं दस्या कि जे इत्थे नैगेटिव होवे तो इत्थे डेरिवेटिव पॉजिटिव आना, जे इत्थे 1 upon x + 1 है इहदा आंसर -1 upon x स्क्वायर आएगा। बट इत्थे मेरे को की सीगा माइनस तो इहदा रिजल्ट की आना इत्थे पॉजिटिव ठीक है ना। इत्थे पॉजिटिव लिखोगे तुसीं, थोड़ा जा कन्फ्यूजन हुई सी ठीक है। +1 upon x स्क्वायर dy upon dx कितना है वाला -1 upon x + 1 ਇਹਦਾ बच्चे होल स्क्वायर ठीक है। 1 upon x + 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू ਇਹਦਾ स्क्वायर करोगे तो यही आना। सो लैफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड आही शो करना हीगा कि दोनों इक्वल है आप करता शो ठीक है इक्वल। सो दे बच्चे देखो मैं आई थिंक सारे क्वेश्चनस जोड़े मैं लगा सीगा कि टिपिकल है डिफरेंट है मैं सारे एक्सप्लेन करते हैं। 16 क्वेश्चन एक्सप्लेन किया 17 12 जोड़ा देखो इतने टैन इनवर्स का स्क्वायर इतने कॉज इनवर्स आ एग्जाम्पल के साइन इनवर्स बिल्कुल सिमिलर तरीके जिदा साइन इनवर्स वाली की उदा ही कॉज का आ जाना उदा ही टैन का आ जाना। सो तुम अपने आप करोगे शो दैट वाले सारे क्वेश्चन ऑलमोस्ट मैं एक्सप्लेन करते हैं। तो एक्सरसाइज 5.7 इज़ कंप्लीट ठीक है। 5.8 तो सिलेबस में इस बार कैंसिल हो चुकी है। सो यह वाला चैप्टर 5.7 तक कंप्लीट हो चुका, मिसलेनियस पार्ट रह गया। सो कंप्लीट योर एक्सरसाइज और चैप्टर 5 till 5.7। थैंक यू सो मच।